Good evening, everyone. Let's get started. The first word we are going to discuss today is esoteric, something we can't understand easily or enjoy the exact meaning of something. Only few people, a few number of people can understand because they have the special knowledge or interest of this thing. The second meaning is very unusual and understand or liked by only a small number of people, especially those with special knowledge or special interest. Sentences are a program of music for everyone, even those with the most esoteric taste. Something which is abstruse, or you can say that difficult to comprehend, or you can say that obscure. The second meaning is specialist. Dictionaries may be required to understand some of the more esoteric texts. And the third one is she has a somewhat esoteric taste in clothes. Synonyms are obscure, hidden, inner, secret, abstruse. And antonyms are simple, open and clear, easily understandable. And the family word esotericism. The next word is felicity. Whenever you feel intense happiness, then we use this expression felicity, a style of felicity. It is basically noun. The first meaning is great happiness, the quality of being well chosen or suitable. Happiness, luck, or a condition that produces positive result. It is basically a state when you feel excitement. Sentences are the story is told with great felicity of style. And the second is her book displays many subtle linguistic felicities. Subtle means distinction. The third one is he is enjoying dubious felicity of marriage. Dubious means doubtful. Synonyms are bliss, cheerfulness, and antonyms are depression. And the linking word is felicity. अब आपने इनको कहाँ पे यूज करना है? इsoteric, जब आप किसी चीज को अंडरस्टैंड ना कर सकें, वो आपके लिए समझना मुश्किल हो, जैसे एब्स्ट्रूज का मैंने एक्सप्रेशन यूज किया, मैंने ऑब्सक्योर का एक्सप्रेशन यूज किया, इसका मतलब है कुछ ऐसा जो छुपा हुआ है। जैसे हम बात करते हैं उर्दू लिटरेचर की, कुछ उर्दू लिटरेचर में ऐसी पॉइंट्स हो सकती हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं, ओनली स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीपल कैन अंडरस्टैंड इट, हम सब की वो समझ में नहीं आता। इsoteric टेस्ट भी हो सकता है क्योंकि स्पेशल नॉलेज है या स्पेशल इंटरेस्ट है, कुछ पीपल जो है ना वो इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके अलावा इsoteric टेस्ट भी हो सकता है, आप किसी पर्सन की क्वालिटी को एक्सप्लेन करने के लिए स्पीकिंग में आप इसको यूज कर सकते हैं। इsoteric टेस्ट अपने बारे में भी यूज कर सकते हैं, अगर आपकी क्लोथ्स की या वैसे जैसे हमने कैथलिक टेस्ट का किया था कि अगर आप डाइवर्सिफाइड टेस्ट रखते हो या किसी पर्सन या पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे हो तो वो पर्सन डाइवर्सिफाइड टेस्ट रखता हो तो आपने ये एक्सप्रेशन यूज करना था कैथलिक। इसी तरह किसी पर्सन की बात को समझना मुश्किल हो, वो इजीली अंडरस्टैंड ना हो आपके लिए, तो आप उसके लिए यूज कर सकते हैं इsoteric टेस्ट। दूसरा हमने क्या किया, ये स्पीकिंग में आपको काफी जगह पे इसको फेलिसिटी, जब आप एक्सट्रीम लेवल पे हैप्पीनेस फील करें, किसी जगह को आपने विजिट किया, जैसे हमने एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन यूज किया था रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस। आई एक्सपीरियंस अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस व्हेन एवर आई विजिट दिस काइंड ऑफ प्लेस। आप जिस प्लेस को विजिट करते हैं, आप उसके लिए जब भी उसको विजिट करें एक इमोशनल फीलिंग जनरेट होती है, आप खुशी फील करते हैं। इस तरह आप फेलिसिटी का एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। आप राइटिंग में भी इसको कहीं जगह पे यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका ज्यादा जो यूज है वो स्पीकिंग में है। उसके अलावा हमने इसके सेंटेंसेस बनाए फेलिसिटी ऑफ स्टाइल और सडन लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक होता है लैंग्वेज बेसिकली, लिंग्विस्टिक फेलिसिटीज के साथ या फेलिसिटी ऑफ मैरिज। अब इन एक्सप्रेशंस में आप इसको यूज कर सकते हैं, ये फ्रेजेस हैं आपके पास। नेक्स्ट हम आज का जो पैसेज लिखेंगे वो बेसिकली है द ट्रू कॉस्ट ऑफ फूड। इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं वो आज हम सीखेंगे। For more than for more than
40 years, the cost of food has been rising. आप यहाँ पे extending, surging कुछ भी यूज कर सकते हैं. upsurge has been rising. It has now reached a point where a growing number of people believe that it is far too high and that bringing it down will be one of the great challenges of the 21st century. That cost, however, is not an immediate cash. In the West, at least, most food is now far cheaper to buy in relative terms than it was in 1960. अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी. मैंने यहाँ पे वन ऑफ द ग्रेट चैलेंजेस, ये मैंने एस क्यों लगाया, मैंने चैलेंज क्यों नहीं लिखा? एक ये चीज मुझे बताएं आप. एक मैं आप लोगों से पूछूंगी कि जैसे 21st सेंचुरी है, इसके बाद साथ मैंने दा क्यों यूज किया? आप लोगों में से कोई बता सकता है कि ऐसे मैंने क्यों किया? कोई एस्टिमेशन? ये तो ज्यादा सा ग्रेट चैलेंजेस है, उसमें से हमने एक लिया ना, एक के बारे में बात. तो फिर यहाँ पे चैलेंज लिखना चाहिए या चैलेंजेस लिखना चाहिए? हालांकि हम एक और दी हमेशा जो है वो सेंचुरीज के साथ हमेशा आता है. हाँ गुड, सेंचुरीज के साथ तो हो गया. यहाँ पे मुझे वन ऑफ द ग्रेट चैलेंजेस मैंने लिखा है या मुझे वन ऑफ द ग्रेट चैलेंज लिखना चाहिए था? नहीं, चैलेंजेस ही आएगा. लेकिन क्यों आएगा? क्योंकि पीछे जो है ये यहाँ पर वर्ब यूज हो रहा है ना. नहीं, मैं आपको बताती हूँ. जब भी कोई चीज स्पेसिफिक हो जाए, जैसे 21st सेंचुरी जिंदगी में एक दफा आएगी, दोबारा नहीं आनी, दैट्स व्हाई हम यूज करेंगे इसके साथ द. जब भी कोई भी, ये ग्रामर का रूल है, वन ऑफ द, इसके साथ कुछ भी हम लिखेंगे वो हमेशा इसके साथ जो वर्ब आएगा ना, जैसे इज, आर, एम, ये जो हमने फॉर्म्स यूज करी हैं वो सिंगल आएंगी. लेकिन इसके बाद जो भी वर्ड आएगा उसके साथ हमने एस मस्ट लगाना है, वो प्लूरल फॉर्म में आएगा. ये आप दोनों चीजें जो है ना दा के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पास नोट कर लें. जैसे 21st सेंचुरी का मैंने बताया कि स्पेसिफिक कर दिए हमने, इस वजह से दोबारा रिपीट नहीं होगी, एक ही है. जैसे सन, मून अपने एक ही है. इसी तरह दार्थ हम लोग यूज करते हैं, दा 21st सेंचुरी आ गया. लेकिन वन ऑफ द ये जब लगाएंगे, जैसे वन ऑफ द ग्रेट चैलेंजेस, यहाँ पे मैं चैलेंज लिखती तो ये गलत होता. इसलिए जब भी वन ऑफ द के साथ कोई भी एक्सप्रेशन देना है, वो नाउन जो होगा ना उसके साथ हम लगाएंगे एस.
बट जो वर्ब आएगा ना इसके साथ वो हमेशा सिंगुलर आएगा, वो हम नहीं, उसको नहीं पॉजिटिव में लिखेंगे। ये चीज अपने पास सेव कीजिएगा। अब यहाँ से हम पढ़ते हैं ये हम कैसे इसको यूज करेंगे। फॉर मोर देन 40 अब years। एक्सक्यूज मी मैम, जी। वन ऑफ द ग्रेट, इसमें नाउन और वर्ब बताएं। चैलेंजेस, ये देखिए वन ऑफ द ग्रेट, उसके बाद हम जो भी वन ऑफ द के बाद कुछ भी लिखना है ना, जैसे वन ऑफ द ग्रेट चैलेंजेस हो गए, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स। मैं कहती हूँ अली इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं स्टूडेंट नहीं कर कह सकती, हालांकि मैं अकेले अली की बात कर रही हूँ। वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इस तरह आएगा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। इसके बाद जो आना ही बेस्ट डिग्री आएगी हमेशा, जैसे ये देखो वन ऑफ द ग्रेट चैलेंजेस, यहाँ आप ऐसे नहीं कर सकते थे, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स आप नहीं कर सकते थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेट कर लें, वन ऑफ द ग्रेट पोएट्स ये कर दें। इसके बाद आपने हमेशा एस लगाना है, अगर आप एस नहीं लगाएंगे, ये ग्रामेटिकल रूल है, इसके बाद अगर आप एस नहीं लगाएंगे तो आपका गलत होगा। ये बस अपने पास सेव कर लें, जो दा का आर्टिकल का लेक्चर होगा उसमें मजीद क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसलिए मैंने बताया कि हम जब पढ़े हैं तो ये एक दो पॉइंट अगर सीखेंगे ना तो ज्यादा आपकी मेमोरी में ना स्टोर रहेगा। इकट्ठा करेंगे आर्टिकल्स का लेक्चर में भी ये पॉइंट मिस हो जाए, तो ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की मेजर मिस्टेक है, क्योंकि हम लोग ये चीज याद नहीं रखते कि वन ऑफ द एक्सप्रेशन हम यूज कर रहे हैं तो हमने इसके साथ, आप बहुत ज्यादा जगहों पे आपने ये एक्सप्रेशन यूज करना है, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द बट, जैसे बट वन प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन हम इसको यूज करते हैं, वहां पे हम वन बेस्ट तो नहीं कर रहे होते, लेकिन जब भी आपने वन ऑफ द एक्सप्रेशन यूज करना है ना उसके साथ हमेशा एस लगाना, उसको सिंगुलर में नहीं रखना, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम अपने पैराग्राफ की तरफ, ये हम कैसे यूज करेंगे। फॉर मोर देन 40 years द कॉस्ट ऑफ फूड हैज बीन राइजिंग। राइजिंग के लिए मैंने आपको बताया एक्सटेंडिंग, सर्जिंग, अपराइज, अपसर्ज, इस तरह के कुछ भी एक्सप्रेशंस आप यूज कर सकते हैं, अपने पास सेव कर लें। वैसे ही मैंने वैसे आपको बताया, इनमें से कोई एक यूज करना है, सारे नहीं यूज करने। अपराइजिंग आ जाएगा, अपसर्जिंग आ जाएगा, वो आपकी मर्जी है। आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। फॉर मोर देन 40 years द कॉस्ट ऑफ फूड हैज बीन राइजिंग। जो फूड की कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है। अब वो इस पॉइंट तक पहुंच चुकी है कि अ ग्रोइंग नंबर ऑफ पीपल, एक बहुत तादाद जो लोगों की है वो यकीन रखती है इट इज फार टू हाई, ये अब बहुत बढ़ चुकी है, एंड दैट ब्रिंगिंग इट डाउन विल बी वन ऑफ द ग्रेट चैलेंजेस ऑफ द 21st century। ये अब इस लेवल तक बढ़ चुकी है कि इसको नीचे लेके आना, इसको कम करना 21st सेंचुरी के एक बड़े चैलेंजेस में से एक है। दैट कॉस्ट हाउएवर इज नॉट इन इमीडिएट कैश। यानी कि ये जो कॉस्ट हमें पड़ी है, एक हमारे पास कॉस्ट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे संक कॉस्ट होती है, हमने कोई कॉस्ट लगाई वो डूब गई, हम रिकवर नहीं कर सकते, वो होगी हमारी संक कॉस्ट। इसके अलावा हमारे पास एक कॉस्ट होती है जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपके पास 2 डिसीजन थे, आप यहाँ मेडिकल कर लेते या इंजीनियरिंग कर लेते, आपने मेडिकल को किया, आपने इंजीनियरिंग को छोड़ दिया, तो आपने क्या किया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो इंजीनियरिंग को छोड़ के पड़ी वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी। इस तरह उसने बात की है कि ये जो कॉस्ट हमें पड़ी है ना, जरूरी नहीं है वो कैश की टर्म में हो सकता है कि जैसे वेस्ट में उनकी जो एग्री लैंड है वो हमारे से कम है। पाकिस्तान जो है ना एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, हम लोग जो है ना फूड को उतना चीपर नहीं प्रोवाइड करते जितना वेस्ट वाले करें, इसकी कोई तो रीजन होगी। अब यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ फूड, ये हम कैसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई ऐसे आ जाए वहां पे। पॉपुलेशन ग्रोथ, आइल्स टास्क 2 है पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में, वहां पे आप यूज कर सकते हैं। इन्फ्लेशन, उस पे यूज कर सकते हैं। पेट्रोल प्राइसेस या इस तरह का वो बढ़ी हैं, वहां पे आप यूज कर सकते हैं। कॉस्ट कंट्रोल नहीं कर पा रहे आप, वहां पे आप यूज कर सकते हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज का ऐसे है, वहां भी आप यूज कर सकते हैं इसको। प्रॉब्लम सॉल्यूशन में भी आप इसको प्रॉब्लम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ना वो इतनी नहीं है कि हम अपनी जो कॉस्ट ऑफ फूड है उसको कम करें। हमारी कॉस्ट ऑफ फूड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, हम लोग सीरीज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की तरफ मूव नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हमारे पास जो एग्री लैंड है वो हमें इतनी प्रोडक्टिविटी ऑफर नहीं करती
जितनी कि हमें करनी चाहिए। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? सबको समझ आ गया है? यस मैम। ओके, आज का हमारा फ्रेजल वर्ब है बैक डाउन। बैक डाउन क्या होता है? विथड्रॉ करना, कंसीड करना, या आप कह लें डिफीट करना। अब हम इसको कैसे यूज करना है? लोकल अथॉरिटीज backed down on their plans to demolish the building. हमारे पास राइटिंग टास्क 2 में एक ऐसे है जहाँ पे वो आपसे पूछते हैं कि हमें जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनको डिमोलिश कर देना चाहिए, या उनको हिस्टोरिकल प्लेसेस में कन्वर्ट करना चाहिए, या उनको डिमोलिश करके, जैसे बुर्ज खलीफा है, यहाँ पे एक पुरानी बिल्डिंग थी उसको खत्म करके हमने एक नई बिल्डिंग बनाई, तो क्या वो हमारे लिए सोर्स ऑफ रेवेन्यू ज्यादा जनरेट करता है, या हम इनको इतना रेनोवेट करें, इनको अच्छी बिल्डिंग जैसे बादशाही मस्जिद है उसकी बात करें, उसको रेनोवेट करके उसको हिस्टोरिकल प्लेसेस में कन्वर्ट कर दें। इस ऐसे में आप इस फ्रेजल वर्ब को यूज कर सकते हैं। लोकल अथॉरिटीज जो है ना, बैक डाउन ऑन देयर प्लान्स, यानी कि कैंसिल कर दिया, विथड्रॉ कर दिया अपने प्लान को टू डिमोलिश द बिल्डिंग। क्यों किया? क्योंकि वो हमें रेवेन्यू जनरेट करता है, टूरिस्ट अट्रैक्शन दे रहा है हमें, हमारे ट्रैवल एंड टूरिज्म में एडिशन कर रहा है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में एडिशन कर रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी इंक्रीज हो रही है। आप इस ऐसे में अपने पॉइंट्स या रीजंस में ये एक रीजन इसको यूज करते हुए लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आज के इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है बियॉन्ड मी। बियॉन्ड मी का क्या मतलब होता है? कंप्लीटली मिसिंग और सरप्राइजिंग, या आप कह सकते हैं सरप्रेसिंग। माय अंडरस्टैंडिंग, सप्रेस कर देना, किसी चीज को दबा देना। इसमें हम इसको सेंटेंसेस में कैसे यूज कर सकते हैं? आई एम कंफ्यूज्ड, ऑल दिस इज बियॉन्ड मी। ये मेरी समझ से बाहर है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। ये भी आप कह सकते हैं जैसे इट इज एडवांस्ड बियॉन्ड माय एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और मेक सेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर और टास्क एट हैंड। यहाँ पे जब भी आप किसी चीज को, जैसे डिफिकल्ट टू कंप्रीहेंड, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो हमारे पास राइटिंग में जो एक्सप्रेशन है वो हम यूज करते हैं डिफिकल्ट टू कंप्रीहेंड। इसके अलावा हमारे पास स्पीकिंग में हमने क्या कहना है, वहां हम ये नहीं कह सकते आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड, या मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। या आप अपनी स्पीकिंग में डेली बेसिस पे भी यूज कर सकते हैं, इट्स बियॉन्ड मी, ये मेरी समझ से बाहर है, मैं इसका क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। कुछ भी ऐसा पॉइंट जिसमें आप कंफ्यूज हो जाए, आपको समझ में ना आए, तो आप ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आया तो बताएं। मैम ये बियॉन्ड मी फॉर्मल है या इनफॉर्मल है? इनफॉर्मल। इडियोमैटिक एक्सप्रेशन हमेशा याद रखिएगा, इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस हमेशा इनफॉर्मल होते हैं। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आपने इसको हमेशा, जब भी आपने इसको यूज करना है तो आप इसको यूज करेंगे अपनी स्पीकिंग में। राइटिंग में आपने इसको कभी भी यूज नहीं करना अनटिल अनलेस आप लेटर लिख रहे हो। जो इनफॉर्मल लेटर है वहां तो भी यूज कर सकते हैं इडियोमैटिक एक्सप्रेशन, या हमारे पास लेटर की टाइप है सेमी फॉर्मल, वहां पे भी एक आधी जगह पे आप इडियोमैटिक एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। जैसे एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन मैं आपको बताऊं, बाय एंड लार्ज। आप कई जगह पे पढ़ेंगे वहां पे लिखा होता है बाय एंड लार्ज, इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली। कुछ लोग इसको यूज करते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली आप आइट्स में अवॉइड करें कि आपने इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस यूज
नहीं करने, स्पेसिफिकली राइटिंग में। ये मैं इसलिए आपको करवाती हूँ कि कुछ बच्चों को इशू होता है स्पीकिंग में, हमारे पास ना वर्ड्स तो खैर वोकैबुलरी के इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन नेटिव्स की डिमांड क्या होती है, वो चाहते हैं कि फ्रेजल वर्ब्स यूज किए जाएं स्पीकिंग में, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन एटलीस्ट 2 to 3 आप यूज कर लें। बहुत ज्यादा भी यूज करने से अवॉइड करें, फिर ऐसा लगता है जैसे बच्चा रट्टा मार के आया। लेकिन 2 to 3 हम लोग इतने 30 to 40 करेंगे। 2 to 3 आप अपने क्यू कार्ड में सेट कर लें, स्पीकिंग में इसको यूज करेंगे तो एक अच्छा एक्सप्रेशन बन जाता है स्पीकिंग में 7-8 बैंड लेने के लिए, इसलिए मैं करवाती हूँ डेली। मैम रिगार्डिंग से रिलेटेड कोई वर्ड बताएंगे, अगर बार बार रिगार्डिंग यूज करना हो तो क्या इसकी जगह यूज कर सकते हैं हम लोग? रिगार्डिंग आज बॉस मुझसे पूछ जगह, वो यानी भी कि कोई समझ सिनोनिम्स जो रिगार्डिंग आप मुझे एक मतलब सेंटेंस लिख के देना, फिर उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बताऊं कि आप उसको किस तरह किस डिफरेंट वेज में लिख सकते हैं। ओके। जैसे ईमेल पे हम लिख रहे होते हैं कि रिगार्डिंग दिस दिस थिंग्स, तो उससे रिलेटेड अब बार बार रिगार्डिंग टू यू विद दिस रिगार्ड, इसकी बात कर रहे हैं? नो नो आईएनजी लगा रहे हैं रिगार्डिंग द सब्जेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। आप मुझे इसका एक सेंटेंस बताएं ना, फिर उस सेंटेंस को मैं रीफ्रेज करके बताऊं। इस तरह रिगार्डिंग में तो आप रिस्पेक्टिव का सेंस भी यूज कर सकते हैं, विद दिस रिस्पेक्ट, ओके मैम। आप रिस्पेक्टिव यूज कर लें, विद दिस सेंस, इन दिस कॉन्टेक्स्ट कर लें, जैसे ऑन द बैकड्रॉप ऑफ दिस, ये हम यूज करते हैं, ये भी इसी के कॉन्टेक्स्ट में हम यूज कर लें। ऑन द बैकड्रॉप ऑफ दिस, इन दिस कॉन्टेक्स्ट, आई एम राइटिंग टू यू विद दिस रिगार्ड, ये यूज कर लें। ओके ओके मैम। ऑन द बैकड्रॉप ऑफ दिस, ये भी सेम सेम ये बैकड्रॉप जो है ऑन द बैक, यानी कि जो मैं बात कर रहा हूँ, जैसे रिगार्ड का आप कह रहे हैं ना कि इस सेंस में मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है, विद दिस रिगार्ड, रिगार्डिंग। एक रिगार्ड होता है आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, एक रिगार्ड होता है ओके आप किसी के जैसे रेफरेंस में बात कर रहे होते हैं, इन दिस रिगार्डिंग, इस सेंस में मैं बात करना चाह रहा हूँ। इसी तरह ऑन द बैकड्रॉप ऑफ दिस, इसका मतलब होता है जैसे पहले मैंने बात की, फॉर मोर देन 40 years द कॉस्ट ऑफ फूड हैज बीन राइजिंग, जो कॉस्ट है फूड की वो बढ़ती जा रही है। ऑन द बैकड्रॉप ऑफ दिस मैनी पीपल कंसिडर दैट, ये जो मैंने बात की है इसके कॉन्टेक्स्ट में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैनी पीपल कंसिडर दैट द कॉस्ट ऑफ फूड इज बेसिकली अपराइजिंग इन डेवलपिंग नेशंस, नॉट इन डेवलप्ड कंट्रीज, बिकॉज दे हैव गुड कंट्रोल, या उनका जो इन्फ्लेशन का लेवल है वो बहुत कंट्रोल्ड है। हमारे पास इन्फ्लेशन में बहुत, जैसे पाकिस्तान जैसी इकोनॉमीज है, यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। आप यूके में चले जाएं, वहां पे इन्फ्लेशन, उनकी जो प्राइसेस है बहुत कंट्रोल्ड होती हैं, वो नहीं बढ़ती। इस तरह जो हम कॉस्ट ऑफ फूड की बात करेंगे तो हम इसको इस कॉन्टेक्स्ट में लिख सकते हैं कि इस कॉन्टेक्स्ट में जो बात करना चाह रहा हूं मैं। ओके मैम। ठीक है, बाकी किसी का कोई क्वेश्चन? और मैम एक रिक्वेस्ट थी, आप प्लीज ये फाइल शेयर कर दें वर्ड की। वो मैं डेली पेस्ट कर देती हूँ, लेक्चर में मैं ना 10 से 15 मिनट में अपडेट कर दूंगी। असल में क्या हुआ है कि मेरी 2 क्लासेस मिस हो गई थी, ट्यूसडे और वेडनेसडे का लेक्चर। कोई इशू नहीं, मैं अपलोड कर दूंगी लेक्चर भी और ये भी वर्ड की फाइल भी मैं सेंड कर दूंगी। ओके मैम। अब हम रिवाइज करते हैं। मैं फ्राइडे को ये आपसे सुनूंगी, सारे जितने मैं रिवाइज करवा रही हूँ फ्राइडे को मैं एक सेशन रखूंगी। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? होपलेस हो जाना, ऑब्जेक्ट पॉवर्टी, और ऑब्जेक्ट मिस्टेक हो सकती है हमारे पास, ऑब्जेक्ट फेलियर हो सकता है। स्पीशियस क्या है? एक पॉजिटिव साइन है हमारे पास, हम होपफुल हो जाते हैं। स्पीशियस मीटिंग, अबॉर्टिव हम आर्मी के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, जब हमारा मिशन जो है अनसक्सेसफुल हो जाए तो हमें एक ऑर्डर दिए जाए, मिशन अबॉर्ट, नाकाम हो गया मिशन, छोड़ दो इसको। एवरेज, एवरेज क्या होता है? किसी चीज को समराइज करना, जैसे आयल्स में हमारी क्या रिक्वायरमेंट होती है कि चीजों को कंसाइज लिखें, ब्रेविटी के साथ लिखें, तो इसी तरह एवरेज क्या है? चीजों को शॉर्ट कर देना, इकट्ठा कर देना, उनको एग्रीगेट कर देना। नेक्स्ट है हमारे पास एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट हम कहते हैं कंप्लीट अथॉरिटी, जैसे अल्लाह ताला की है एब्सोल्यूट कंप्लीट अथॉरिटी, इंटायर। रिक्वेस्ट हम कहते हैं इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, मनी हो सकती है जो आपको इनहेरिटेडली ट्रांसफर होती है। बेरीव्ड कहते हैं किसी फैमिली मेंबर्स में से किसी की डेथ हो जाए
जो लोग जिंदा हैं वो उसके लिए गमजदा हूँ, तो उनके लिए हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं bereaved फैमिलीज हो सकती हैं, bereaved फ्रेंड्स हो सकते हैं, bereaved colleagues हो सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास ब्लैटेंट, एक नेगेटिव वर्ड है। ब्लैटेंट लाई भी हो सकता है, ब्लैटेंट अटेम्प्ट भी हो सकती है, वाज़ह खुलम खुला गुस्ताख लहजे की जिसे हम यूज करते हैं ना, इस टर्म में हम इसको यूज कर रहे होते हैं। ब्लाइट, ब्लाइट कहते हैं फलों का खराब हो जाना, मुरझा जाना। लेकिन जब आप किसी चीज का नेगेटिव इम्पैक्ट किसी दूसरी चीज पर शो करना चाह रहे हो तो आप तब भी इसको यूज कर सकते हैं, कास्टिंग अ ब्लाइट शेडो ऑन समथिंग, जिस पे आप करना चाह रहे हैं वो। बिकॉलिक, इसको आप सीन्स में यूज करेंगे, विलेज लाइफ से रिलेटेड है। स्पीकिंग में काफी जगहों पे आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर जैसे आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है कि आप किसी जगह पर, जैसे स्वीडन की एग्जांपल ले लेते हैं, आप स्वीडन क्यों जाना चाह रहे हैं, या यूके की बात करते हैं आप क्यों जाना चाह रहे हैं, लेकिन स्वीडन की बात करें तो वहां पे जो एटमॉस्फेयर है वहां पे ग्रीनरी बहुत है, तो आप ये कह सकते हैं बिकॉलिक सीन्स अट्रैक्ट्स मी, कैप्चर माय अटेंशन, इस सेंस में आप इसको यूज कर सकते हैं। स्पीकिंग में भी और राइटिंग में भी किसी स्पेसिफिक की बात कर रहे हो तो वहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट होता है केमिकल रिएक्शन, इसको हम टू कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे। फर्स्ट वन एज, दो रिएक्शन हो रही हूँ, उसमें हम इसको किसी रिएक्शन को फास्ट करने के लिए दो केमिकल्स भी एक केमिकल ऐड कर देते हैं। इससे क्या होगा, उनके दरमियान केमिकल रिएक्शन या तो फास्ट हो जाएगा या स्लो हो जाएगा, तो हम क्या कहते हैं, उसने कैटलिस्ट रोल प्ले किया है, उसने एज अ कैटलिस्ट एक्ट किया है। दूसरा जो है वो हम एक पर्सन के लिए यूज करते हैं, कोई ऐसा इंसान जो रेवोल्यूशन लेके आ रहा हो, लीडर हो, कैटलिस्ट रोल प्ले करे, लोगों में अवेयरनेस लेके आए, कैटलिस्ट रोल। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कैटेगोरिकल, कैटेगोरिकल हम कहते हैं क्लियर, कैटेगोरिकल स्टेटमेंट हो सकती है, ऑब्वियस हो जाना, एब्सोल्यूट का जैसे हमारे पास एब्सोल्युटली, ऑफ कोर्स, सर्टेनली, तो हम क्या कहते हैं, कैटेगोरिकल स्टेटमेंट देती है, कैटेगोरिकल अश्योरेंस देती है, कैटेगोरिकली डिनाई करती है, मैंने मना कर दिया, वाजिया, इस तरह आप इसको यूज करें। ये कैथलिक, जिसका भी हमने राइटिंग में भी जो इनमें डिस्कस कर रहे थे फेलिसिटी और इसोटेरिक में, उसमें मैंने आपको वोकैबुलरी के वर्ड में बताया था कैथलिक, डाइवर्सिफाइड टेस्ट, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं कैथलिक। कैथलिक टेस्ट भी हो सकते हैं, कैथलिक हमारे पास क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड भी हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सेरिब्रल, जब भी हम इमोशनल नहीं होते, अपने मेंटल अप्रोच को यूज करते हुए, अपनी मेंटल थिंकिंग को यूज करते हुए डिसीजन लेते हैं, उसको हम कहते हैं सेरिब्रल थिंकिंग। कॉलरिक, कोई ऐसा पर्सन जिसको जल्दी गुस्सा आ जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, तो हम क्या यूज करते हैं, कॉलरिक। डेसिमेट होता है मैसिव किलिंग, वो प्लांट्स की भी हो सकती है, वो एनिमल्स की भी हो सकती है, वो ह्यूमंस की भी हो सकती है, डेसिमेट। नेक्स्ट है हमारे पास डेफरेंस, डेफरेंस आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसके पास आपसे ज्यादा नॉलेज है, उसकी आपसे ज्यादा एज है, उसके पास जो एक्सपर्टीज हैं, स्किल्स हैं, वो आपसे ज्यादा है, इस वजह से आप उनके साथ रिस्पेक्टफुली बिहेव कर रहे हैं, आप डेफरेंस बिहेवियर शो करना चाह रहे हैं। उसके बाद है डेक्रस, डेक्रस भी क्या है, सिविलाइज्ड शो करना। उसके बाद है डिस्पोंडेंट, होपलेस हो जाना, कोई उम्मीद की रमक भी बाकी नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया, डिस्पोंडेंट। डाइग्रेस होता है सीधे रास्ते से भटक जाना, इसका अल्लाह ताला ने सूरत फातिहा में भी कहा है कि डाइग्रेस, भटक जाना, अल्लाह ताला हमें उन लोगों में ना करना जो भटक गए हैं, डाइग्रेस। इक्विवोकल होता है जैसे अनक्लियर हो हमारे पास, समझ में नहीं आ रहा, ऑब्वियस नहीं है, एम्बिग्विटी है हमारे में, तो हम इसके लिए एक्सप्रेशन यूज करते हैं इक्विवोकल। एंडेमिक होता है एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर रीजन में कोई डिसीज या कोई कंडीशन फैल जाए तो हम उसके लिए यूज करते हैं एंडेमिक, जैसे करप्शन के लिए हमने यूज किया, मलेरिया के लिए यूज किया। पेंडेमिक होता है पूरी दुनिया में फैल जाए, जैसे कोविड था, उसके लिए हमने एक्सप्रेशन यूज किया पेंडेमिक। नेक्स्ट है हमारे पास इनॉर्मिटी, इनॉर्मिटी कहते हैं स्वीरिटी, शदीद किस्म की तकलीफ होना, इनॉर्मिटी, पेन, इस तरह। इलूसिव कहते हैं जैसे इक्विवोकल और इलूसिव दोनों अनक्लियर और सिनोनिम है, अनक्लियर और ऑब्वियस की सेंस में, हम एम्बिग्विटी के सेंस में हम यूज करते हैं। इसोटेरिक था कि कुछ लिमिटेड लोग होते हैं जो इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, लिमिटेड नॉलेज वाले लोग या लिमिटेड इंटरेस्ट होता है वो इसको यूज कर सकते हैं, इसोटेरिक। फेलिसिटी हमने कहा कि एक्सट्रीम हैप्पीनेस है, इंटेंस हैप्पीनेस, आप बहुत ज्यादा खुशी फील कर रहे होते हैं, या एक स्टेट होती है या एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आप एक्साइटमेंट फील कर रहे होते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं। एक्सक्यूज मी मैम, जी जी।
मैम ये राइटिंग में आप कुछ वर्ड्स लिखवाती हैं, उनके इन बिटवीन ना डैशेस आती हैं, जैसे कि स्टेट ऑफ द आर्ट है एक वर्ड, तो इसको हम राइटिंग में कैसे लिखेंगे? इस इनके इन बिटवीन आएंगे वैसे ही जी बिल्कुल, डैशेस? जैसे हमने डिस्कस किया था स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर्स, ये सिंपल हम नहीं लिख सकते, इनके दरमियान हमें डैशेस लगानी पड़ेंगी क्योंकि ये जदीद सेंटर्स की बात हो रही है, स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर्स। इनोवेशन के लिए ना हम ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, इनोवेशन लेके आने के लिए एक स्पेसिफिक सेंटर्स कायम करती हैं, उनमें से हम एक का नाम या कह लें जो नेटिव्स यूज करते हैं वो यूज करते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर्स। आप रीडिंग में बुक 10 में पढ़ेंगे ये एक्सप्रेशन स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर्स। ऑर्गेनाइजेशन ठीक है मैम, मैं बस यही पूछना था कि इनके राइटिंग में भी हम इसी तरह लिखेंगे जी बिल्कुल, राइटिंग में हमारे पास डैशेस के साथ। जी बिल्कुल, ये तो एक एक्सप्रेशन था ना, इस तरह आपने करना है, लेकिन राइटिंग में हमारे पास कॉमास, कॉमा डैश, डैशेस। जब भी आपने इनक्लोजिंग डिटेल देनी हो ना, तो आप इस तरह के एक्सप्रेशन, इनक्लोजिंग डिटेल का जब लेक्चर होगा उसमें कॉमा लगा के आप इनक्लोजिंग डिटेल देके सेंटेंसेस लंबा कर लेते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ईएम डैश। आपने कॉमा लगाया, अपनी बात कंप्लीट की, बाद में डैश लगा दी, इससे क्या होगा, ये एक्सप्रेशन जो है ना डाइवर्सिफाइड आप शो करेंगे, आपको पता होगा कि आप एग्जामिनर को पता है कि आपको ये चीजें आती हैं। आपने डैश ईएम डैश यूज किया, एक तो सिंपल डैश होती है ना, इसको जो ग्रामर में हम पढ़ते हैं वो होता है ईएम डैश। ये राइटिंग हम इस तरह इसको एक्सप्रेशन यूज करके अपनी इनक्लोजिंग डिटेल बेसिकली लिखते हैं, जिससे जैसे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है, हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं, उनमें हमने कोई बात लंबी करनी हो, जैसे इंटरनेट की डेफिनेशन देनी हो, या हम कह दें मोर एंड मोर चिल्ड्रन पर्टिकुलर लिविंग इन अर्बन एरिया, अर्बन सेटिंग, इस तरह, तो आप इनक्लोजिंग डिटेल देने के लिए ये भी यूज कर सकते हैं, कॉमास, कॉमा और डैश, ये एक एक्सप्रेशंस है, या सेमी कॉलन की भी सीरीज दे के आप बात कर सकते हैं, वो खैर लेक्चर लंबा हो जाएगा, लेकिन आप ये राइटिंग एक्सप्रेशन है, आप जितनी रीडिंग करेंगे उतने पॉइंट ऑफ व्यू आपके क्लियर होते जाएंगे। ठीक है मैम। ओके मैम, और लास्ट फ्राइडे वाली मीटिंग ना काइंडली उसका आप लिंक भेज दीजिएगा, क्योंकि वो मैंने लेक्चर नहीं लिया था, जी, मैं कर तो देती हूँ अगर हो सके तो उसका लिंक। जी जी मैं कर देती हूँ। ठीक है मैम, थैंक जी, welcome। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन? यू। नो मैम। मोहसिन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ esoteric? Ma'am, esoteric means likely to understand or enjoy. That is the one thing that is enjoy or understand by some few people. Special thing, Only such special as can जी जी such as you can say that a word that is only understood by some scientists, yes specialists may be required to understand some of the most esoteric texts. गुड, अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स आवर टाइम अप, इंशाल्लाह बाकी कल डिस्कस करेंगे। गुड बाय। मैम वो फ्राइडे वाला लेक्चर नहीं मिला, उसकी वीडियो नहीं मिली। जी जी मैं अभी आपको शेयर कर देती हूँ 15 से 20 मिनट में। चलिए ठीक है, थैंक यू। जी थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।